Hello everyone and welcome to Innovative Science Tutorials. So students, let us continue with the chapter Cell, the Unit of Life. And first of all, let us see that what we are going to learn today. Children, first of all, today we will do cells, how numerous. In this topic, we will learn about the classification of organisms on the basis of number of cells they have. Next, we'll do cells, how small. Here we'll learn that how small can the cells be. Okay. Next is some amazing facts about the cells. Then why are cells so small? We'll find out the reason and we'll explain it, okay, with proof that why the cells are so small, what is the reason behind it, okay. And finally, we'll learn about the various shapes and functions of cells, okay. So let us start, children. Now, first of all, children, let us see that how the organisms are classified based on the number of cells they have. Children, the number of cells in an organism is directly proportional to the size of the organism. Means if the number of cell is more, then the size of the organism will be more. If the number of cells is less, then the size of the organism will be small. So let us see, accordingly we have classified the living organisms into three groups according to the numbers of cells they possess. So first of all, we have the first one, that is the single celled organisms. These are the organisms like the small plants and animals which are made up of just one cell. That means they include all the unicellular organisms. Like what, beta? Like your paramecium, like amoeba, like Chlamydomonas, like mycoplasma, like bacteria, yeast. Yeast is the only fungus that is unicellular, okay, and I already told amoeba. So these all are made up of what? They all are made up of single cell. Next category is few celled organism. Here again, children, the organism is not very complex, it's simple organism, okay, and it is made up of how many cells? Only a few cells, ठीक है, बहुत ज़्यादा cells के नहीं बने होते. In order to understand this, just take this example of Volvox. This is a Volvox colony, ठीक है, तीन है आपके स्क्रीन पे, one this one, then second, and this is third. तो Volvox colony जो है बेटा, this is composed of few cells and each cell is a single Volvox that is capable of independent existence. Capable of what? Capable of independent existence. अब यहाँ पे क्या होता है, वॉल्वॉक्स में ये पाया जाता है कि वो जनरली ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं पाए जाते, ग्रुप में पाए जाते हैं. तो एक तरह से लगता है कि दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो व्हाट आर दे आर सिंपली द कॉलोनीज एंड ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट सेल एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. दूसरा एग्जाम्पल देखें तो बेटा स्पाइरोगिरा, ठीक है, स्पाइरोगिरा जो है दैट इज फिलामेंटस एल्गी, इस तरह का दिखता है, ठीक है. इसके सेल्स के बीच में पार्टीशन होता है जिसको हम लोग सेप्टा बोलते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है बेटा, इसमें स्पाइरल शेप्ड जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज स्पाइरोगिरा. स्पाइरोगिरा आर is filamentous algae, okay, their body are in the form of filaments which are composed of several cells. So if I show you one cell like this, it is having a nucleus and it has got this type of spiral shaped, just a minute children, spiral shaped क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज स्पाइरोगिरा. तो स्पाइरोगिरा भी क्या है बेटा, एक्चुअली फिलामेंट के फॉर्म में तो पाया जाता है, लेकिन इसके पूरे फिलामेंट जो है उसमें अगर मान लो दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, हर एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, इसका हर एक सेल, ठीक है. दैट इज वाई वी से दैट दिस इज ऑल्सो व्हाट मेड अप ऑफ फ्यू सेल्स, क्योंकि सब सेल्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑल्दो देयर इज अ पार्टीशन बिटवीन देम. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो सेल्स के बीच में हमेशा पार्टीशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा. इतना अभी आपको नहीं पढ़ना है, मैं बता दे रही हूँ बस, ठीक है. इसको बोलते हैं सेप्टा.
अब ये है स्पाइरोगिरा, यहाँ पे भी आप देख लो फ्यू सेल्स का बना हुआ, तो फ्यू सेल्स कुछ तो रेंज होगा ना, फ्यू सेल्स का मतलब कितना बेटा 100 to thousands तक, ठीक है, 100 सेल्स टू कितना सेल्स तक, फ्यू थाउजेंड्स, लेट अस से 1000 टू लेट अस से 3000, ठीक है, तो इतना रेंज में सेल्स होंगे। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स दे विल बी नोन एज व्हाट, दे विल बी नोन एज द यूनिसेलुलर सॉरी फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म। Next is the third type children, that is the multi-celled organisms. As the name indicate, this group includes all the multicellular organisms. कैसे organisms को include करता है, multicellular organisms को, जैसे कि क्या आपके example के, आपको मैंने example में यहाँ एक दिखाया हुआ है, what is this, this is a banana tree, तो banana tree is example of one multicellular organism। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, all other complex organisms like human beings also known as homo sapiens, cat, dog, cow, all are multicellular organisms, so they come under the last one, that is multi-celled organisms। और यहाँ पे बेसिकली जितने भी एडवांस्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फंजाई किंगडम होता है, ये सारे मल्टीसेलुलर के अंदर आते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन चिल्ड्रन। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। चिल्ड्रन नेक्स्ट इज सेल्स हाउ स्मॉल। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल्स कितने स्मॉल हो सकते हैं। जो मैक्सिमम लिमिट है बेटा, दैट इज व्हाट इज 10 माइक्रोमीटर। एक सेल कितना छोटा हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर तक छोटा हो सकता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज योर माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका साइज कितना होता है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेराइटी is Mycoplasma gallipectum, very famous. Why is it so famous? Because it is found where? It is found in the bladder, in the waste disposal organs, that is anus, in the genital organs, in the respiratory tracts of our ancestor which forms the primates। तो ये कहाँ पे present होते हैं, primates के bladder में, उनके genitals में, उनके एनस में, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि एक सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, तो माइकोप्लाज्मा भी क्या हो गया, यूनिसेलुलर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बोलिए, द मोर बेटर वर्ड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड दिस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल। The largest cell is that of ostrich egg। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना होता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेल। फिगर में आप देख सकते हो बहुत सारे, इस पिक्चर में बहुत सारे एग्स हैं ऑस्ट्रिच के, और हर एक एग जो है वो एक सिंगल सेल है एंड अगेन दैट सिंगल सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसी से तो ऑस्ट्रिच बनेगा ना पूरा कंप्लीट ऑस्ट्रिच, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल है वो। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट सेल हियर चिल्ड्रन, देन द लॉन्गेस्ट सेल आर दोज ऑफ द न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स जो होते हैं उन वो सबसे लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, दैट इज अ कोलोसल स्क्विड चिल्ड्रन। वेट जस्ट अ मिनट, दिस इज अ कोलोसल स्क्विड। लेट मी इरेज द स्क्रीन चिल्ड्रन। This squid has nerve cells around 10 meters in length। अराउंड 10 meters in length तक इसके पास जो नर्व सेल्स होते हैं वो हो सकते हैं। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट एवर ऑन अर्थ चिल्ड्रन। सो दिस एग्जाम्पल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोलोसल स्क्विड दैट हैज गॉट अराउंड मीन्स ओवर 10 मीटर्स, 10 मीटर से भी ज्यादा लॉन्ग नर्व सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दिस डायग्राम इज ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ओके, इस तरह का दिखता है। नाउ लेट अस फोकस एट सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सेल्स of human beings। okay, of human beings, here we are talking about human beings only। so the largest cell in a female human body is that of what, is that of the ovum। ovum is also known as the egg cell। what it is children, it is the female gamete। female का जो sex cell होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ovum बोलते हैं। और ovum human beings का largest cells होता है। body के जितने भी cells हैं जिनको हम somatic cells
बोलते हैं, उनसे भी काफी ज्यादा बड़ा होता है ये ओवम या एग सेल ऑफ द फीमेल, ठीक है। और ये है क्या बेटा, दिस इज द फीमेल गैमेट। अगर मैं पूछूं कि क्या इसका साइज है, देन द साइज इज 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। अगर ये एक ओवम है तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होगा, दैट विल बी 1 mm, ओके। एंड इट इज विजिबल, सिंस 1 mm इज नॉट दैट स्मॉल, तो इट इज विजिबल टू द नेकेड आई एंड वी डू नॉट नीड एनी माइक्रोस्कोप। लेकिन अगर हम लोगों को इसके अंदर का स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझना है, देखना है, दैट टाइम वी नीड अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड लेट अस टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट cells in human body, then the smallest cells are the sperms, ठीक है। sperms जो होते हैं that is found in the human body, human male body, they are the smallest cells. And what is their size? Their size is very very small, they are microscopic, it is 60 micrometers, about 0.002 inches, just imagine कितना छोटा है ना in length। And they obviously, since they are 60 micrometers in length, they won't be visible to naked eye, we need a microscope if we want to see them. And the last one is the longest cells, children. Now, longest cell is the same thing, that is the neuron or the nerve cell, which are the structural and functional unit of what, of the nervous system. So they form the longest cell and also a fundamental unit of the nervous system. So basically what they do, they link the different parts of the body with the brain, ठीक है। brain के साथ connect करता है, brain gives the command and accordingly all the parts, different parts of the body they perform. So now the next one, children, this is the most important topic of the day today, that is why are cells so small? What is the reason? Let us find out the answer over here and also solve the mystery. So in order to understand this, children, I have taken two cube. So this is your first cube and the larger one is your second cube. Let us say this is first, okay, and this is what, this is your second cube. Now let us say that the dimensions here are 1 centimeter, 1 centimeter height and similarly 1 centimeter length और breadth। और इस तरफ भी हम लोग आ जाते हैं, इधर भी देख लेते हैं, यहाँ भी हर एक जो सिंगल क्यूब होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर का, जिसके कारण एक रो में आप देख लो कितना क्यूब है, 1 2 3, तो कितना हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस साइड ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। I hope you are understanding. Wait, I will indicate here also, that will be more better for you to understand. और ये वाला हो गया height, ठीक है। सेम इधर भी होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं। तो आप लार्जर क्यूब का बात करोगे तो वहां पे भी फेस कितना होगा, 6 ही होगा, बिकॉज इट्स अ क्यूब, इट डजंट मैटर दैट हाउ लार्ज इट इज, ठीक है, फेस तो सेम ही होगा। एंड ईच क्यूब, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल, है ना। तो अब अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, एक ये क्योंकि एक सिंगल क्यूब है, चलिए पहले इसका निकालते हैं। तो हर एक साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन, फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, सो 1 into 1 गेट्स टू योर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज वेरी सिंपल। तो इसका कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक फेस का है, टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया होगा 6 into 1 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए लिखा है। फिर निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब, फर्स्ट क्यूब। तो वॉल्यूम का होता है साइड इंटू साइड, दैट इज योर साइड क्यूब। तो साइड क्यूब 1 क्यूब दैट इज योर 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हर एक साइड का वैल्यू है 1। अब नेक्स्ट वाले फिगर को देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्यूब को, लार्जर क्यूब को। लार्जर क्यूब में बेटा अगेन 6 फेसेस है और हर एक फेस का जो वैल्यू जो है वो कितना है, आप देख लो यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल ही ब्लॉक था, एक सिंगल फेस में एक सिंगल ही यूनिट था, तो वहां पे बड़ी आसानी से निकल गया 6 फेस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितने सारे ब्लॉक से हमें देखने होंगे, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और हर एक का कितना बताया था मैंने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितने फेस होते हैं क्यूब के 6 होते हैं, तो 6 into 9 is your 54. That is why I have mentioned over here 54 centimeter square. Next is the volume of the larger cube. Volume आप देख लो 3 into 3 into 3 हो जाएगा, that gets to, let me write it for you children, 3 into 3 into 3, that is your 27 centimeter क्यूब। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। अब हमें देखना है कि सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम का रेशियो क्या आता है। फर्स्ट केस में जो फर्स्ट वाला क्यूब है उसका देखते हैं। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ surface area and volume, we get 6:1. That means surface area is much more in the case of smaller cube as compared to its volume. It is very high. That means इसका जो surface area है वो बहुत ज्यादा exposed है, ठीक है। तो यहाँ पे एक conclusion मैं लिख देती हूँ, more surface area exposed, ठीक है। surface area exposed is more। अब सेकेंड वाले में देखते हैं, अगर हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, बेटा मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। 54 डिवाइडेड बाई 27, तो क्या होता है 9 6 जा 54 एंड 9 3 जा 27, देन 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, दैट गेट्स टू 2:1 आ गया। 2:1 यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सरफेस एरिया जो है वो काफी कम है, ठीक है। अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है सरफेस एरिया से लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 का डिफरेंस है दोनों में। मतलब कि जितना लार्जर होगा तो सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम का रेशियो उतना कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 6:1 था, जबकि एक क्यूब बहुत छोटा था, लेकिन वही क्यूब जो एक बड़ा क्यूब का हम लोग एग्जाम्पल ले लिए तो वहां पे ये रेशियो देखिए 2:1 हो गया। सरफेस और वॉल्यूम के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम हो गया। तो ऐसा केस में क्या होता है, द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड इज वेरी लेस, ठीक है, या लेट मी राइट इज लेस। आई होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर मेन टॉपिक दैट वी वांट टू लर्न अबाउट। Now let us apply the knowledge we got in the previous slide to these two cells. Let us say the first cell, it's the small cell, just name it, and this one as the large cell, ठीक है। इतने दूर में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा, क्योंकि ये छोटा है तो इसके क्या क्या क्वालिटीज है। इसका जो सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम का रेशियो होगा वो किस टाइप का हो सकता है। चलिए यहाँ पे छोटे वाले क्यूब का लिख देते हैं, मान लीजिए 6:1 है, लेकिन ये लार्ज सेल है तो इसको चलिए कंपेयर करते हैं बड़े वाले क्यूब से और इसका भी रेशियो लिख देते हैं सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम का, जो कि हम लोग का आया था 2:1। मतलब कि फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले में क्या हो गया, सेकेंड वाले में देखिए सरफेस एरिया बहुत कम एक्सपोज्ड है, तो लेस सरफेस एरिया एक्सपोज्ड, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखिए बेटा, एक सेल जो है, जब हम लोग बोलते हैं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना सारा लाइफ प्रोसेस के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी खुद कर सकता है। तो क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस करता है, वो रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है, डाइजेशन करता है, ये सारा चीज वो करता है। इसके अलावा उसके बॉडी में सर्कुलेशन भी होता है। लेकिन एक चीज है कि वो तो एक सिंगल सेल का बना हुआ, वो कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। इसका मतलब उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे वो कौन करेगा, उस सेल के अंदर जो पार्ट्स प्रेजेंट है वो करेंगे, ठीक है। इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए तो डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे उस सेल के वो अलग अलग काम करेगा। कोई एनर्जी बना रहा है, कोई फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई ब्रीदिंग कर रहा है, कोई सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन फाइनली काम कर कौन रहा है, एक सिंगल सेल काम कर रहा है, ठीक है। ये सारा काम करने की वजह से बहुत सारे जो मेटाबोलाइट्स है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी
प्रोड्यूस होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हम लोग जो सेल अपने अंदर लेता है जो कि यूजफुल होता है, कुछ जो हार्मफुल या अनयूजफुल होते हैं उनको वो बाहर भेजता है। तो क्या क्या है ये मटेरियल्स, लेट अस सी। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जिसको कहाँ जाना है, इसको कहाँ जाना है बेटा, इसको सेल के बाहर जाना है। फिर क्या है, फिर है वाटर, फिर न्यूट्रिएंट्स, इसको सेल के अंदर जाना है। फिर है वेस्ट प्रोडक्ट, अगेन वेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारा हो सकता है, एक तो मैंने ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन कर दिया, उसके अलावा बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, जैसा ऑर्गेनिज्म उसका इसका वैसा ही उसका वेस्ट प्रोडक्ट। और लास्ट में है अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में हम लोग यूजफुल सब्सटेंसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं और हार्मफुल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, दोनों ही केस में। फर्स्ट वाले केस में जो अंदर जाने का या बाहर जाने का जो प्रोसेस है, पहले इसको समझो, इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिया, काफी छोटा है सेल, पहला वाला है स्मॉल सेल, और सरफेस एरिया एक्सपोज्ड बहुत ज्यादा है, तो आराम से सेल के हर एक पार्ट को क्या मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया। इसी तरह वाटर भी मिल गया, काफी आसानी से न्यूक्लियस तक आराम से पहुंच गया। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हो गया बेटा, वो बहुत ही आसानी से बाहर रिलीज हो गया। सिमिलरली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो भी रिलीज हो जाएंगे। अदर सब्सटेंसेस में जो भी हो वो अंदर या बाहर बड़ी ही आसानी से चल जाएंगे क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आते हैं लार्जर सेल में। लार्ज सेल में जो है ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लो सेल को न्यूट्रिएंट ही लेना है, तो न्यूट्रिएंट बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल तक पहुंचाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद ही तो न्यूक्लियस तक या सेंटर ऑफ द सेल तक पहुंचेगा ना। सिमिलरली सेंटर ऑफ द सेल से कोई भी चीज सेल के बाहर पहुंचाने में भी तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेल का साइज जितना बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ज्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो घट जाएगा। मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल का साइज बढ़ा है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ा है। इससे क्या होगा, जो डिफ्यूजन काफी सिंपल था एक सिंगल सेल में, वो एक स्मॉल सेल में वो एक लार्जर सेल में काफी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग प्रोसीजर बन जाएगा। कैसा प्रोसीजर बन जाएगा बेटा, टाइम टेकिंग प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसीलिए इट इज बेटर दैट सेल शुड बी स्मॉल सो दैट दे परफॉर्म efficiently and they give their best. Now students, next is cell shape and function of cell. Cells vary greatly in their shape, okay, and they are generally disc shaped, polygonal, cuboidal, thread like, branched or irregular, isn't it? Some of the examples of various shapes of the cells are shown in the diagram. So why do they have such a wide variety of shapes? This is because the shape of cell is determined by the type of फंक्शंस इट परफॉर्म। तो अगर सेल जो है, जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आरबीसीज जो हैं दे आर बाई कनकेव डिस्क शेप्ड। इनका जो शेप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाई कनकेव डिस्क शेप्ड बोलते हैं। ये दोनों तरफ से डिप्रेस्ड होता है, एक डिप्रेशन होता है दोनों सरफेस से, ठीक है। आप इस वाले डायग्राम में बेटर समझ सकते हो, देखो किस तरह से डिप्रेशन है दोनों। ये क्यों होता है, सो एज टू accumulate more and more amount of hemoglobin which is in turn utilized to transport carbon dioxide and oxygen, most importantly oxygen gas to the different cells of the different parts of the body। तो ये actually ये जो biconcave disc like structure है ये क्या facilitate करता है, this facilitate greater accumulation of what बेटा,
greater accumulation of hemoglobin, ठीक है, so as to enhance the circulatory system to rapidly transport oxygen to the different parts of the body, and also in turn bring back the carbon dioxide produced as a result of cellular respiration by the different cells of the body located in different parts, ठीक है। तो ये था बाइकनकेव डिस्क शेप्ड आरबीसीज का सिग्निफिकेंस कि आखिर वो बाइकनकेव डिस्क शेप क्यों होते हैं। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सिमिलरली इफ यू लुक ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज द डायग्राम ऑफ ल्यूकोसाइट दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, द शेप इज एमोवॉइड है ना, इरेगुलर शेप है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस भी आप देख रहे हो दैट इज बाइलोब। उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ हमें सेल के शेप से मतलब है। तो सेल का जो यहाँ पे शेप है वो क्या है, एमोबॉइड शेप्ड है, ठीक है। अब ये एमोबॉइड शेप क्यों है, क्योंकि ये सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इसका शेप बिल्कुल अमीबा की तरह दिखता है। ये क्यों ऐसा शेप बनाता है, ये ऐसा शेप इसलिए बनाता है, आप इधर देखिए, सपोज दिस इज वन WBC, suppose it has got again the same type of bilobed nucleus और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसने क्या डिसाइड कर लिया है, WBC तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, isn't it? It is a defense, it is a part of the immune system of the body। तो इसका काम है इसको मारना, इसको खा जाना या इसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म सीडोपोडिया लाइक दिस, है ना। एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, microorganism will be engulfed by the WBC. So that is the reason WBC has got the amoeboid shape. It produces the pseudopodia in order to do phagocytosis. इस प्रोसेस को हम लोग, आप लोग पढ़ोगे स्टैंडर्ड 10 में, इसको बोलते हैं phagocytosis, ठीक है। engulfing of microorganisms or any other particle by the WBCs producing the pseudopodias, ठीक है, pseudopodia not podias। Now next is what beta, next is nerve cells। अगर आप nerve cells को देखो, nerve cells are very long, isn't it? They are the longest cell। अब वो longest क्यों होते हैं, क्योंकि उनका काम ही है मैसेंजर का काम। मैसेंजर का काम मतलब क्या, these are the dendrites and dendrons, you must be knowing, these are the डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। ये वाला डेंड्रॉन कहलाता है, ये वाला डेंड्राइट्स कहलाता है। लेट मी इरेज चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी इरेज एवरीथिंग। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो फाइनर ब्रांच है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो बिल्कुल साइटोन की तरफ है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला कहलाता है डेंड्रॉन, मतलब मेन ब्रांच, और उससे जो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस निकल रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इन दोनों को ही हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरर्स। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरर्स। अब ये क्या करते हैं, बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है उनको किसी भी तरह का स्टिमुलस जब रिसीव होता है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है, या कोई विजुअल सेंसेशन हो सकता है आइज को, तो वो सेंस ऑर्गन उसको रिसीव करते हैं स्टिमुलस को और पास करते हैं उनमें लोकेटेड नर्व सेल्स को। अब ये नर्व सेल्स इंटर्न क्या करते हैं, इनसे जुड़े हुए, हो सकता है यहाँ पे कोई और नर्व सेल भी है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई और नर्व सेल है जो कि इनसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। मैं बस जस्ट हल्का सा बना के आपको बता दे रही हूँ बेटा कि यहाँ पे एक और नर्व सेल है। इसी तरह एंड टू एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और बंडल्स में भी पाए जाते हैं, और इनको बोला जाता है नर्व। जब ये बंडल में पाए जाते हैं, बंडल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज द एक्सॉन एंड बंडल ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड नर्व। तो वो तो अलग बात है, अभी हम लोग समझते हैं नर्व सेल कैसे काम करता है। तो रिसीव किया किसी सेंस ऑर्गन ने मैसेज, और उसने उस मैसेज को पास किया नर्व सेल को। नर्व सेल अब उसको थ्रू, मतलब ये तो नर्व में प्रेजेंट है, अब ये बिल्कुल उसको कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो मैसेज कहाँ जाएगा, वो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। तो हम लोग को समझ में क्या आ रहा है, बेसिकली ये जो है नर्व्स जो है वो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन।
ओके, तो ये सारा काम कर कौन रहा है ग्राउंड लेवल पे? नर्व सेल कर रहा है। तो नर्व सेल का जो रास्ता है ना वो काफी लंबा है, लॉन्ग है, इसीलिए नर्व सेल खुद भी लॉन्ग है। Now I hope you have understood. So what is the function? They conduct impulses from one part of the body to the other, or from one part of the body to the central nervous system. That means to the brain via spinal cord. So this was about the nerve cells. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन द स्पिंडल शेप्ड सेल्स ऑफ द मसल्स। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, आप देख सकते हो। सेल्स आर स्ट्रिएटेड मींस दे हैव गॉट स्ट्रिएशंस, दे हैव गॉट स्ट्राइप्स, दे हैव न्यूक्लियस टू, एंड व्हाट इज देयर शेप? देयर शेप इज स्पिंडल शेप, बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनके पास एक खास प्रॉपर्टी है। वो खास प्रॉपर्टी क्या है मैं अभी बताती हूँ, थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेने दीजिए। वो खास प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। कॉन्ट्रैक्टाइल मींस मस्कुलर मसल सेल्स जो होते हैं दे आर केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन? यू डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं बेटा। कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं वो, और क्या करेंगे, किस चीज में हेल्प करेंगे? मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो कैसे हेल्प करेंगे? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट चिल्ड्रन? एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों किया जाएगा इन मसल सेल्स के द्वारा, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा? मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। सो दैट इज द रीजन दे आर लॉन्ग, दे आर स्पिंडल शेप एंड दे आर contractile. So I hope you understood that why the muscle cells they do have this type of shape. The last one are the guard cells. अब अगर guard cells की बात करें बेटा, guard cells कहाँ पाए जाते हैं? They are found in leaves. Where in the leaves? In the mesophyll cells का जो एरिया होता है, mesophyll सेल्स ऑफ द लीफ, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका आप स्ट्रक्चर देखो, लेट मी ड्रॉ। Guard cells are two bean-shaped structures. ठीक है, they have a prominent large nucleus along with scattered chloroplast all over it. ठीक है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, they are also surrounded by the epidermal cell। ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड दे आर व्हाट इज द शेप? द शेप इज बीन शेप। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि आखिर में ये बीन शेप्ड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं ये बीन शेप्ड? दिस इज बिकॉज दे हैव टू ओपन and close the structure that is known as stoma, plural is stomata। क्योंकि अगर ये बीन शेप्ड के हैं तभी जाके जब ये स्ट्रेच करेंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, इनका जो इनर मेम्ब्रेन है दूर होगा, और इनर मेम्ब्रेन जैसे ही दूर होगा तो स्टोमा क्या होगा? ओपन हो जाएगा। दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट टाइम when the two inner membranes will come close to each other, that time the stoma will get closed. Why? Because there is no photosynthesis occurring at night time due to unavailability of sunlight. I hope this is clear that how the function of the cells are associated with the shapes, and that is the reason that cells they have numerous or wide range of shapes. So with this we come to the end of today's class, children. See you all very soon in the next class with another topic. Okay, until then you all stay tuned and do not forget to subscribe, share, like my channel, and also press the bell icon so as to get all the updates of the upcoming videos and live sessions from my channel. Thank you, children.